Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on two-part pricing system. So, Rest Easy Company is a rapidly growing startup in the technology center. It develops customized ERP packages for clients across various business centers. The business comprises primarily of two departments, consultant and customer support. Consultant department has highly qualified professional from management, accounting and technology background who approach clients as a team and work out solutions that meet their needs. Customer support personnel are in charge of IT implementation and provide support through telephone, emails or on-site. Currently, the strength of the consultant department is 200 while that of customer support is 150. Right? So, रेस्ट इजी कंपनी क्या है? एक रैपिडली ग्रोइंग स्टार्टअप है टेक्नोलॉजी सेंटर में. ये क्या बनाती है? कस्टमाइज्ड ईआरपी पैकेजेस बनाती है. बेसिकली इस कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, पहला कंसल्टेंट और दूसरा कस्टमर सपोर्ट. जो कंसल्टेंट डिपार्टमेंट है वो क्लाइंट को अप्रोच करता है और उनकी नीड्स के हिसाब से ईआरपी पैकेजेस बनाता है, और जो कस्टमर सपोर्ट है वो टेलीफोन, ईमेल इन सब से क्लाइंट को सपोर्ट करता है. आज की डेट में कंसल्टेंट डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ है 200 और कस्टमर सपोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? 150. Yash, the founder and CEO of the company, is very passionate about this business model. To deliver high quality product solutions, he believes that his staff should be well trained and up to date with developments in their professional field. इसका फाउंडर और सीईओ कौन है कंपनी का? यश. वो एक पैशनेट पर्सन है इस बिजनेस मॉडल के बारे में. ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस मॉडल और वो ये चाहता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सॉल्यूशन दे, और इसके लिए उसको स्टाफ रखने होंगे दैट शुड बी वेल ट्रेंड एंड अप टू डेट विद द डेवलपमेंट्स इन देयर प्रोफेशनल फील्ड्स. राइट? Therefore, Rest Easy provides periodic training to its staff in-house. वो Rest Easy company periodic training देती है सारे employees को in-house training, right? All employees are expected to undergo 2 weeks of training annually. A training department has been set up with qualified trainers in various fields who provide periodic training sessions to both consultant and customer service department. राइट? सारे एम्प्लॉयज को हर साल 2 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडरगो करनी है और उनके पास ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है. राइट? एक कंसल्टेंट डिपार्टमेंट, एक कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट और एक क्या है? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है जहां वेल ट्रेन ट्रेनर्स है जो सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं. Training department has 5 trainers. Training sessions are aimed at providing skills that the executive need to provide better service to their clients. This in-house focus of high quality delivery is the key factor that Yash believes would set apart Rest Easy from its competitors. Right? Basically Rest Easy company ERP packages provide करती है. दो डिपार्टमेंट है, कंसल्टेंट एंड कस्टमर सपोर्ट. कंसल्टेंट में 200 एम्प्लॉय, कस्टमर सपोर्ट में 150 एम्प्लॉयज. राइट? एंड देन एक वो क्या करती है? ट्रेनिंग देती है किनको? एम्प्लॉयज को इन हाउस ट्रेनिंग. तो एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है जिसमें 5 ट्रेनर्स है और ये कस्टमर सपोर्ट और कंसल्टेंट दोनों ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है. In addition to delivering training sessions, trainers are responsible for developing training material for routine, ongoing as well as specialized training session. क्या जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो ट्रेनिंग तो देते ही हैं और वो क्या डेवलप करते हैं? ट्रेनिंग मटेरियल रूटीन, ऑनगोइंग और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए. They attend conferences, train the trainer sessions and subscribe to journal to keep themselves up to date with various development that consultant and customer support executive need to be aware of. At the beginning of each year, heads of consultant and customer service department advise the training department on the expected number of training sessions that their staff would undertake. In special situation where development needs to be communicated rapidly, extra sessions can also be conducted. Training department budgets are prepared based on these needs. देखिए, हर साल के बिगनिंग में जो कंसल्टेंट और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के हेड है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को बताते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स अंडरगो करेगा हमारा डिपार्टमेंट, और कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ज़्यादा ट्रेनिंग भी अंडरगो कर सकते हैं. राइट? सो बजट इस हिसाब से बनता है. स्टार्टिंग में कितनी ट्रेनिंग होगी उसके हिसाब से. नाउ
Transfer pricing, training cost allocation. Cost incurred by the training department is allocated to the consultant and customer service department on the training session availed by both department. जो cost training department incur करता है ट्रेनिंग के लिए या जिस भी चीज के लिए, वो allocate होता है किसके बीच? customer service department, customer support department and consultant department. जितने जितने number of trainings उन्हें ली उस basis पे उस department में allocate होता है. A standard quote या फिर transfer price based on budget is provided at the beginning of the year. At the end of the year, actual cost is allocated based on actual training sessions of each department. Right? At the end of the year, जो actual cost है वो bifurcate होती है इन दोनों के बीच, customer service and consultant department based on the number of trainings they have undergone. Each of the user departments use the transfer price to prepare their individual budgets that further gets built into their pricing models used for billing clients. One of the metric for manager appraisal is also the financial performance of their individual department. Hence, manager of both consultant and customer service department are very cost conscious. जो जब अप्रेजल होता है मैनेजर्स का कंसल्टेंट या कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, तो उसमें से एक बेसिस क्या रहता है? एक बेसिस रहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. इस वजह से दोनों ही डिपार्टमेंट के मैनेजर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कॉन्शियस है. Figures for budget and actual cost for 2018 of the training department are as follows. Cost particulars, budget or actual. Salary, depreciation on office equipment, software license for training packages, conference travel for the trainer session, telephone, training supplies, training lunch and total expenses. Right? So ये है budgeted total expense और ये है actual total expense. Right? सो बेसिकली ये जो एक्सपेंसेस है ये कौन करा है? ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने किया ये सारे एक्सपेंस, लेकिन ये बायफर्केट होंगे बिटवीन हुम? कंसल्टेंट एंड कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स दे हैव अंडरगॉन. और जो मैनेजर्स है वो कॉन्शियस रहते हैं अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. क्यों? क्योंकि उस बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट होता है. Consultant and customer service departments are charged based on the number of training session actually availed. Detail of training sessions for each department are. दोनों ही डिपार्टमेंट में 100 ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में कंसल्टेंट डिपार्टमेंट में तो 100 हुई, लेकिन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में कितनी हुई? 80 ट्रेनिंग्स हुई. राइट? सो बेसिकली जब बायफर्केट होगा एक्चुअल कॉस्ट, राइट, तो किस बेसिस पे होगा? 100:80 के रेशियो में. क्यों? क्योंकि एक्चुअल में 80 ट्रेनिंग हुई कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में और कंसल्टेंट डिपार्टमेंट में 100 ट्रेनिंग्स हुई. नाउ ये सारी चीज दी हुई है. क्या क्या दिया हुआ है कि कंसल्टेंट और कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है, राइट? एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है. ट्रेनिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? ट्रेनिंग देता है, इन हाउस ट्रेनिंग कंसल्टेंट और कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को. और जितना भी एक्सपेंस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का होता है वो इन दोनों के बीच एलोकेट होता है कंसल्टेंट और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेनिंग दे हैव अंडरगॉन. एक्चुअल कॉस्ट बायफर्केट होता है. Problem of goal congruence. In accordance with the above explanation, the training department quoted a rate of 14,800 per session based on the budgeted cost and budgeted training sessions. Right? देखिए जो आपने अबव एक्सप्लेनेशन दिया, तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने एक रेट कोट किया 14,800. ये कैसे कोट किया? बजटेड कॉस्ट और बजटेड ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से. बजटेड कॉस्ट कितना है? बजटेड कॉस्ट टोटल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंस यानी 29,60,000 और बजटेड ट्रेनिंग टोटल 100 + 100 दैट इज 200. तो 29,60,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना हो गया? 14,800. लेकिन ये क्या है? बजटेड रेट पर ट्रेनिंग. लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गया? देखिए एक्चुअल कॉस्ट लग गया टोटल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को 38,25,000 और ट्रेनिंग कितनी हुई? 200 की जगह 180 हुई. राइट? मतलब टोटल कॉस्ट बढ़ गया और ट्रेनिंग कम हो गई, इसीलिए प्राइस क्या हो गया? 21,250 पर सेशन ऑफ ट्रेनिंग. कॉस्ट ओवररन ऑफ 6,450 पर सेशन, यानी 14,800 सोचा था और हुई कितने? 21,250. तो 6,450 हर एक सेशन में इतने रुपए ज्यादा लगे. अ जंप ऑफ 44% फ्रॉम द ओरिजिनल कोड. ओरिजिनल 14,800 और 21,250 लग गया, यानी 44% ज्यादा लग गया कॉस्ट. राइट? नाउ consequently a meeting was called that was attended by the managers of by the managers of consultant, customer service and training department along with the CEO Yash.
तो ऑफकोर्स 44% कॉस्ट ज्यादा लग गया। तो एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कंसल्टेंट और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के हेड और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड और सीईओ यश सारे के सारे थे। The user department were unhappy with the higher charge. Manager of the consultant department raised the following concern. User department मतलब consultant और customer service department दोनों ही unhappy थे उस चार्ज से, और जो consultant department का manager है उसने ये concern उठाया कि the market rate for similar training provided with external vendors were only 12,000 per session. He has accepted a higher transfer price of 14,800 per session only because the in-house training program was more customized towards REST easy's end user clients. However, if the department is actually going to be charged 21,250 per session, he would rather source the training to the outside vendor, right? वो कहता है कि मार्केट रेट जो सिमिलर ट्रेनिंग होती है तो उसका मार्केट रेट है 12,000 रुपीज पर सेशन, लेकिन उसने 14,800 रुपीज पर सेशन भी एक्सेप्ट किया कि चलो इन हाउस ट्रेनिंग होगी तो जो एंड यूजर के लिए जरूरी है वैसी कस्टमाइज ट्रेनिंग होगी। लेकिन अगर आप 21,250 चार्ज कर रहे हैं पर सेशन का तो आई वुड गो फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ द ट्रेनिंग, राइट। और वो कहता है फर्दर ही पॉइंटेड आउट while his department has adhered to its commitment of 100 training sessions, the customer service department has availed of 20 lesser sessions than its commitment, राइट। वो कहता है कि मैंने कमिट किया था 100 सेशंस और 100 ट्रेनिंग सेशंस ही हुए, लेकिन कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट ने 100 सेशन बोला और उनके एक्चुअल सिर्फ 80 ट्रेनिंग सेशंस ही हुए। रिव्यूइंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड इन नेचर. Therefore, when the transfer price is based on the actual cost and actual training session, the per session cost has increased because the customer service department did not undergo the entire 100 session. देखिए वो क्या बोल रहा है कि जब हम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड इन नेचर. हम देखते हैं, देखिए सैलरीज ऑफकोर्स ये फिक्स्ड है, वेजेस नहीं है, सैलरीज है, फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस फिक्स्ड है, कॉन्फ्रेंस ट्रेवल फॉर ट्रेन द ट्रेनर सेशन फिक्स्ड है, टेलीफोन फिक्स्ड है, ट्रेनिंग सप्लाई सिर्फ वेरिएबल है और ट्रेनी लंच क्या है, वेरिएबल है. तो मोस्ट ऑफ मतलब 60,000 29,60,000 सॉरी 1,50,000 29,60,000 में से सिर्फ 1,50,000 क्या है, वेरिएबल है, बाकी फिक्स्ड है. मतलब वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है. तो क्या होगा जब फिक्स्ड कॉस्ट होगा और ट्रेनिंग 20 कम हुई, राइट. जब फिक्स्ड कॉस्ट सपोज 29,60,000 लेते हैं और 200 ट्रेनिंग्स तो आ रहा था 14,800. लेकिन अगर आप सपोज कॉस्ट बढ़ाओ भी मत, सेम रखो और 180 ट्रेनिंग्स कर दो, क्योंकि 20 ट्रेनिंग्स उन्होंने कम ली कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो क्या आ जाएगा, पर सेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा और हो जाएगा 16,444. क्यों ऐसा हो जाएगा, ये अभी मैंने फिक्स प्लस वेरिएबल ले लिया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, सेशन के हिसाब से बढ़ रहा कम हो रहा नहीं है. मेजर कॉस्ट 1,50,000 वो छोड़ दो, तो मेजर कॉस्ट सेशन के हिसाब से कम हो रहा है या बढ़ रहा नहीं. तो जितने ज्यादा सेशन होंगे उतना पर सेशन कॉस्ट कम आएगा. इन्होंने 20 सेशंस कम लिए कस्टमर सपोर्ट ने, तो पर सेशन कॉस्ट बढ़ गई, right. Therefore, when the transfer price is based on the actual cost and actual training session, the per session cost has increased because the customer service department did not undergo the entire 100 session. He questions why he should bear a higher allocation of cost due to variance in actual and budgeted usage of training sources of the customer service department, right. उसने कहा कि वो ज्यादा allocation क्यों बियर करे, जबकि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने 20 ट्रेनिंग सेशन कम किए, तो मैं उसका, क्योंकि 16,444 आता उसका भी मतलब ज्यादा, मैं क्यों बियर करूं, राइट. Manager of the customer service department explained that the variance of 20 training session is on account of the executive handling high priority work pressure that did not allow them enough to complete some of the training session. At the same time, she contended that she should not be charged for those 20 session for which no training was available. लेकिन कंसल्टेंट डिपार्टमेंट बोलता है मैं क्यों बियर करूं वो चार्ज जो आया है इनकी 20 ट्रेनिंग कम करने से. लेकिन वही कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट कहता है क्योंकि हम हाई प्रायोरिटी वर्क कर रहे थे इसलिए ये वर्क नहीं कर पाए, तो हमको चार्ज नहीं करना चाहिए इस 20 ट्रेनिंग सेशन के लिए. हम क्यों सहे 20 ट्रेनिंग सेशन का
cost. Manager of the training department explained that the 5 lakh cost overrun on salary due to new hire of a trainer. The trainer's experience is very valuable to the company and hence to get her on board, the company had to offer a higher pay scale. देखिए अब यहाँ पे 29,60,000 बजटेड है और 30,25,000 एक्चुअल है. देखिए यहाँ पे दिख रहा है सैलरी में 5 लाख का इंक्रीज, 25 लाख बजटेड और 30 लाख एक्चुअल. तो वो बोल रहा है ये जो 5 लाख है ये ट्रेनर की सैलरी है, ट्रेनर जरूरी है, राइट? तो उसको 5 लाख ज्यादा देने पड़े फॉर अ गुड ट्रेनर. डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट वाज हायर बाय 3 लाख ड्यू टू हायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एजिंग इक्विपमेंट, राइट? डेप्रिसिएशन 3 लाख से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है एजिंग इक्विपमेंट का. और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिजल्टेड इन एक्सेस स्पेंड ऑफ ₹25,000. एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जिसके वजह से एक्सेस 25,000 खर्च हुए. द मैनेजर आर्ग्यूड दैट द रेस्ट ऑफ एक्सपेंस वर नॉर्मल इंक्रीज विच वर नॉट कंट्रोलेबल. और वो बोलता है इन तीनों के अलावा 5 लाख, 3 लाख और 25,000 के अलावा बाकी सारे कॉस्ट ऐसे थे जो नॉर्मल इंक्रीज है और कंट्रोलेबल नहीं है. यश, the CEO, was understandably not happy with the cost overrun. Higher internal transfer price to the end user department would affect employee morale. However, even though a cheaper option was available from an outside vendor, he could still foresee the value of investing in in-house training programs. Intangible benefits from these customizations would definitely help the company's growth. वो क्या? Of course, यश happy नहीं है ये cost overrun से. अब वो कह रहा है कि जो इंटरनल ट्रांसफर में इंक्रीज हुआ है इससे एम्प्लॉय का मॉरल लूज होगा, लेकिन वो अभी भी ये कह रहा है कि हम इसको आउटसोर्स नहीं करेंगे क्योंकि इन हाउस ट्रेनिंग में कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स है जो कंपनी के लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल है. To conclude, he was not willing to shut down the training department. At the same time, he had to resolve the dispute resulting from internal transfer pricing in an amicable way. Like profits, teamwork is critical to success, right? Now what? See, अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग का एक्सपेंस इन दोनों में बाइफर्केट होगा. एक्चुअल ट्रेनिंग का जो एक्सपेंस है वो एक्चुअल सेशंस के हिसाब से, लेकिन कंसल्टेंट बोलता है, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट का है, मैं क्यों बियर करूं? पहले तो 14,800 मैंने एक्सेप्ट किया जबकि बाहर 12,000 में सेम ट्रेनिंग होती है, लेकिन इतना ज्यादा मैं बियर नहीं करूंगा. कॉस्ट में इंक्रीज इनके कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के 20 ट्रेनिंग सेशंस कम करने के कारण भी आया है. लेकिन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बोलता है हम कुछ हाई प्रायोरिटी वर्क में थे तो इस 20 सेशन का कॉस्ट हम पे अलोकेट ना किया जाए. और ट्रेनिंग सेशन का हेड बोलता है कि 5 लाख कॉस्ट ओवररन हुआ सैलरी की वजह से जो जरूरी था नए ट्रेनर लाने के लिए. 3 लाख क्या हुआ? डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा था एजिंग मशीन का. और 25,000 सॉफ्टवेयर लाइसेंस स्पेशलाइज्ड. और बाकी क्या है? नॉर्मल इंक्रीज है. लेकिन यश जो है वो हैप्पी नहीं था ओवररन से, बट ही इज इनटू इन हाउस ट्रेनिंग ओनली. ही वॉन्ट आउटसोर्स द ट्रेनिंग. तो अभी उसको वो क्या सोचता है कि सक्सेस के लिए तो टीम वर्क बहुत जरूरी है. तो अब क्या किया जाए, राइट? नाउ अब क्या करना है? Required. Identify the threats to goal congruence due to internal transfer pricing. आपको बताना है goal congruence में क्या threat आया due to internal transfer pricing. दूसरा, during the meeting an alternate transfer pricing methodology based on two-part pricing system was formulated. Cost would be segregated into fixed and variable category. A transfer price for each category would be arrived based on budgeted cost and budgeted usage. The standard rate for fixed cost will be applied to the budgeted training session and charged to the user department. The standard rate for variable cost will be applied to the actual training session and charged to the user department. Fixed costs would be defined as those that are not directly impacted by the number of training session. Calculate the transfer price to be charged to each department under this method. अब मीटिंग में क्या हुआ कि उन्होंने टू पार्ट प्राइसिंग मेथड को अलाउ किया. मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्लस अ लमसम चार्ज. तो जो मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालना है कि जो बजटेड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन, नॉट द एक्चुअल कॉस्ट. यहां पे लिखा भी है
स्टैंडर्ड रेट ना, स्टैंडर्ड रेट फॉर वेरिएबल कॉस्ट। स्टैंडर्ड रेट कैसे आएगा? स्टैंडर्ड रेट आता है बजटेड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड ट्रेनिंग पीरियड, यानी जो बजटेड कॉस्ट है पर ट्रेनिंग इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेनिंग। और फिक्स कॉस्ट कैसे? बजटेड कॉस्ट है जो एक ट्रेनिंग के लिए इनटू बजटेड नंबर ऑफ ट्रेनिंग। ये क्यों बजटेड नंबर ऑफ ट्रेनिंग फिक्स कॉस्ट? क्योंकि ट्रेनिंग 10 हो, 20 हो, 80 हो, 100 हो, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट चाहे मैं 80 ट्रेनिंग ले रही हूँ या 100, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है, तो मुझे वो बियर करना ही पड़ेगा मेरे डिपार्टमेंट को। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्रेनिंग रहता है, तो ठीक है, उसका स्टैंडर्ड रेट यानी बजटेड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ ट्रेनिंग, यानी बजटेड कॉस्ट पर ट्रेनिंग इनटू नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो एक्चुअल है वो कर लेंगे। तो उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट को बाइफर्केट किया है, राइट। तो हमको उस हिसाब से क्या निकालना है? ट्रांसफर प्राइस। इवेल्युएट हाउ द टू प्राइस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइस एड्रेस द थ्रेड्स टू गोल कॉन्ग्रुएंस एज आइडेंटिफाई इन क्वेश्चन 1। हमने क्वेश्चन 1 में थ्रेड्स बताया गोल कॉन्ग्रुएंस के, तो ये जो टू पार्ट प्राइसिंग मेथड है वो उसको कैसे सॉल्व करता है ये बताना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द थ्रेड्स टू गोल कॉन्ग्रुएंस। क्या थ्रेड है? पहला थ्रेड ये है कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो एलोकेट हो रहा है कंसल्टेंट और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में। तो हो सकता है उस पे एलोकेशन तो हो ही नहीं रहा, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, बट इट्स एलोकेटेड टू द यूजर डिपार्टमेंट, तो वो उस कॉस्ट को इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रहा हो। दिस कैन बी अ रीजन, राइट। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट not controlling its cost of training department is allocated to consultant and customer support department। ये क्या है? दोनों यूजर डिपार्टमेंट्स। इसको आपसे क्या बोलेंगे? यूजर डिपार्टमेंट्स। Hence, it may not be managing cost efficiently, right? हो सकता है ना कि मुझ पे तो अलोकेट हो नहीं रहा, यूजर डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, तो इट मे नॉट बी मैनेजिंग इट्स कॉस्ट इफिशिएंटली। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो आउटसोर्स कर सकते हैं, जो बाहर ट्रेनिंग मिल रही है वो चीपर है देन द इन हाउस ट्रेनिंग, राइट। तो इससे क्या होगा कि एक तो देखिए आउटसोर्सिंग में कम है और इन हाउस ट्रेनिंग का कॉस्ट ज़्यादा है, और ऊपर से जो कॉस्ट यूजर डिपार्टमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है, ये ट्रेनिंग की कॉस्ट उनके कंट्रोल में नहीं है, वो उन पे अलोकेट कर दी जाती है, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो इस पे भी बेस्ड है, तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी फील मोटिवेटेड, राइट। सो द ट्रेनिंग इज चीपर if we outsource it. If they outsource it, the training is cheaper if they outsource it. The user departments are evaluated on the basis of financial performance and the cost, training cost, is allocated to them, which they can't कंट्रोल। मतलब क्या
ऐसा कॉस्ट उन पे अलोकेट हुआ है, ट्रेनिंग का जो एक्सपेंस है वो उन पे अलोकेट हुआ है, उस पे तो उसका कंट्रोल भी नहीं है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल कर सकता है वो कॉस्ट, यूजर डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसा कॉस्ट जिन पे उनका कंट्रोल नहीं है, एक तो वो आप उन पे अलोकेट कर देते हैं, ठीक है, और उस बेसिस पे आप उनकी परफॉर्मेंस भी मेजर करते हैं। और जबकि उसका वो ट्रेनिंग सेशन का जो कॉस्ट है वो बाहर कम है, 12,000 में है, और आप एनीवे उनसे ज्यादा ले रहे थे 14,800, और ऊपर से ज्यादा अलोकेशन हो गया। So the training is cheaper if they outsource it. The user department are evaluated on the basis of financial performance. एक तो आप उनको evaluate कर रहे हो उनके financial performance पे, ऊपर से ऐसे कॉस्ट मतलब ट्रेनिंग कॉस्ट allocate कर देते हो जो वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उस कॉस्ट पे उनका कंट्रोल नहीं है, right? So this is a threat. Now third, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, राइट, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड इन नेचर, जबकि वो बाइफर्केट हो रहा है ऑन द नंबर ऑफ एक्चुअल ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। अगर कस्टमर सपोर्ट ने कम ट्रेनिंग सेशन लिए तो उन पे कम कॉस्ट अलोकेट हुआ, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर। तो बेचारे कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ने पूरी 100 की 100 ट्रेनिंग अंडरगो की, टारगेट मीट किया, फिर भी उन पे कॉस्ट अलोकेशन ज्यादा है। उन पे कैसे ज्यादा है, देखिए मैंने आपको बताया था, सपोज 29,60,000 है, डिवाइड बाय 200 करेंगे तो 14,800 आएगा, लेकिन 29,60,000 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो 1644 समझो। तो इन पे बेचारे कंसल्टेंट डिपार्टमेंट में 16,444 इंटू 100 आ जाएगा, राइट? क्यों? जबकि गलती किसकी है, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट की, कि उनने 20 सेशंस कम लिए। सो दिस में क्रिएट अ फ्रिक्शन बिटवीन देम, राइट? द most cost of training department are fixed in nature. क्या है, फिक्स्ड है नेचर में, but they are allocated on the basis of actual number of training sessions. राइट, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से अलोकेट होते हैं वो। हियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट undergoes all the trainings while customer support department undergoes only 80 training sessions. Still, consultant department has to bear increased cost allocation, which may create friction between the user departments. ऑफ कोर्स वो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, भाई मैंने पूरी ट्रेनिंग किया और मेरे को फालतू में कॉस्ट ज्यादा अलोकेट कर रहे हो, उसने 20 ट्रेनिंग कम किया, इसमें मेरी गलती नहीं है, राइट? सो फिक्स्ड नेचर के हैं, इसलिए अगर वेरिएबल नेचर के होते तो ठीक है, जितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स उतना कॉस्ट लगेगा, तो आप एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेनिंग पे बाइफर्केट कर दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट सारे कॉस्ट का नेचर फिक्स्ड है, और आप उसको 180 ट्रेनिंग में ही बाइफर्केट कर रहे हैं, तो पर ट्रेनिंग सेशन कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, राइट? तो इससे क्या होगा कि कंसल्टेंट डिपार्टमेंट विल नॉट फील मोटिवेटेड कि मैंने पूरी ट्रेनिंग खत्म किया और फिर भी मेरे को ज्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, राइट? तो दीज आर सम थ्रेड्स टू वर्ल्ड कॉन्ग्रुएंस। नाउ नंबर सेकेंड क्या बोला है, सेकेंड ये बोला है कि 2 पार्ट प्राइसिंग सिस्टम फॉलो करने का सोचा है इन्होंने,
सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलके उसमें क्या किया है कि टू पार्ट प्राइसिंग में क्या होता है, मार्जिनल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट, मार्जिनल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यानी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसने बोला है स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, यानी टोटल बजटेड वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड ट्रेनिंग। तो जो रेट आएगा इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो बजटेड नंबर ऑफ ट्रेनिंग के हिसाब से ही बाइफर्केट करेंगे। देखिए, सो टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम। तो ये लमसम चार्ज क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सैलरी, डेप्रिसिएशन, लाइसेंस फी और वो जो ट्रैवल है, टेलीफोन है, ये सारे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। कौन सा, सैलरी 5 लाख की, डेप्रिसिएशन प्लस लाइसेंस प्लस ट्रैवल प्लस टेलीफोन, तो ये सब मिला के कितना है, 28,10,000, राइट। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सिर्फ लास्ट के दो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो कितना है, 1,50,000, राइट। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट का रेट निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट रेट इज इक्वल टू 28,10,000, उसने बोला था टोटल बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट निकालना है और मल्टीप्लाई करना है बजटेड सेशन से, तो स्टैंडर्ड रेट निकाल रहे हैं हम, स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट रेट 28,10,000 डिवाइडेड बाय 200 सेशंस हुए, राइट। सो 28,10,000 डिवाइडेड बाय 200 सेशंस हुए, तो कितना, रुपीज 14,050 पर सेशन, राइट। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट रेट। सो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट रेट कैसे निकलेगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि वहां बोला है स्टैंडर्ड रेट फिक्स कॉस्ट का इनटू बजटेड सेशंस, राइट, स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल कॉस्ट का इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ सेशन। तो इन्होंने टू पार्ट सिस्टम में क्या किया है, स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई किया है, फिक्स कॉस्ट के स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई किया है किससे, बजटेड नंबर ऑफ सेशन से, और वेरिएबल कॉस्ट के स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल नंबर ऑफ सेशन से। तो स्टैंडर्ड रेट क्या निकलेगा, रुपीज 750 पर सेशन। मैम यहाँ पे आपने एक्चुअल नंबर ऑफ सेशन क्यों नहीं लिए, क्योंकि बोला है कि स्टैंडर्ड रेट निकालना है, तो स्टैंडर्ड रेट ऐसे ही निकलेगा। तो अभी ट्रांसफर प्राइस टू कंसल्टेंट डिपार्टमेंट, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट का ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, देखिए, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कितना है इसका, देखिए 750 इंटू 10 सेशंस हुए, प्लस लमसम चार्ज कितना, कितना है लमसम चार्ज, 10 इंटू 100, ये है लमसम चार्ज। सो टोटल 10 नहीं 100 होगा, 100 सेशंस है, टोटल 14,80,000। कैसे आया, समझ में आया, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट का ट्रांसफर प्राइस कैसे आया, 750 वेरिएबल कॉस्ट है इनटू 100 सेशंस उसने अंडरगो किए, और यहाँ पे 14,050 फिक्स कॉस्ट है इनटू 100 सेशन। ये तो एनीवे 100 सेशन से ही मल्टीप्लाई करेंगे ये जो लमसम चार्ज है, क्यों, क्योंकि 14,05,000 ये तो लगेगा ही, आप 80 सेशन करो, 100 सेशन करो, कितने भी सेशन करो, ये लगेगा ही। टीपी टू कस्टमर मतलब ट्रांसफर प्राइस टू कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, ये कैसे आएगा, देखिए मार्जिनल कॉस्ट तो 750 इंटू 80, क्योंकि एक्चुअल सेशंस 80 हुए, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितना, उतना ही, इंटू 100 करके ही फिक्स कॉस्ट निकलेगा। सो 750 इंटू 80 कितना आया, 60,000 प्लस 14,05,000 which is equal to rupees
14,65,000। बेसिकली देखिए 15,000 ट्रांसफर प्राइस कम है। क्यों? वो 15,000 कैसे आए? 20 ट्रेनिंग सेशंस कम हुए, तो 20 ट्रेनिंग सेशन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट उसको कम लगा, और वेरिएबल कॉस्ट हर सेशन का है 750, सो 750 इंटू 20। फिक्स कॉस्ट तो पूरा लगेगा ही लगेगा, चाहे 80 सेशन करो या 100 सेशन करो, विच इज वेरी वेरी वैलिड इनफ। तो आपने ये निकाल लिया 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में, आपने क्या निकाल लिया? ट्रांसफर प्राइस निकाल लिया, राइट। पहले आपने थ्रेड्स बताए गोल्ड कॉन्ग्रुएंस के 2 पार्ट प्राइसिंग सिस्टम में, मार्जिनल प्लस लमसम, तो वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो वेरिएबल कैसे निकालना है, फिक्स कैसे निकालना है, ये मीटिंग में डिस्कस हुआ था और आपने वो निकाल लिया, राइट। तो टोटल आप ये जो टोटल करेंगे, ऑफ कोर्स ये क्या है, एक मिनट, 29,60,000 बजटेड था और 38,25,000 क्या था? एक्चुअल एक्सपेंस था। तो ऑफ कोर्स एक्चुअल एक्सपेंस अलोकेट तो किया ही नहीं है, आपने किया है बजटेड एक्सपेंस को ही अलोकेट किया है। तो कुछ एक्सपेंस बचेंगे जो अलोकेट नहीं हुए, उसका क्या करेंगे? वो आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को अलोकेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप बजट से ज्यादा गए, तो अब आपको वो अलोकेशन झेलना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वो भी एक्सपेंस क्या करेगा? इफिशिएंटली करेगा, राइट। So now, wait a minute. Wait. तो हमने 2 पार्ट प्राइसिंग के हिसाब से क्या निकाल लिया? ट्रांसफर प्राइस निकाल लिया, थ्रेड्स भी निकाल लिए। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है? थर्ड क्वेश्चन हमको पूछता है वो हम लिखेंगे कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को बाकी अलोकेशन करना है। पहले हम क्या देख रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, that's related to thread something. Evaluate how 2-part pricing method address the threats to goal congruence as identified in question 1. क्वेश्चन 1 में हमने गोल कॉन्ग्रुएंस के कुछ थ्रेट बताए थे। आपको ये बताना है कि 2-part प्राइसिंग मेथड कैसे उसको ओवरकम करता है, उन थ्रेट्स को आपको ये इवेल्युएशन देना है, राइट। सो पहले तो अभी हम सेकेंड पार्ट में ये करते हैं कि जो बचा हुआ है, ये देखिए टोटल कितना हुआ? टोटल कॉस्ट का एलोकेशन 14,80,000 प्लस 14,65,000, तो टोटल कितना हुआ? टोटल कॉस्ट एलोकेशन 29,45,000, राइट। और टोटल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? 38,25,000. So remaining unallocated amount, that is rupees 8,80,000. ये कैसे आया? 38,25,000 माइनस 29,45,000, ये अलोकेट हो गया है और ये टोटल एक्सपेंस था। तो अनअलोकेटेड 8,80,000 है, विल बी allocated to ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ये किसको अलोकेट कर देंगे? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को अलोकेट कर देंगे, राइट। 8,80,000। अभी थर्ड आपको इवेल्युएट करना है कि कैसे 2-part प्राइसिंग मेथड हेल्प करेगा उन थ्रेड्स को जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी उसको ओवरकम करने में। तो आपने क्या लिखा था कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो सकता है कॉस्ट को इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रहा हो क्योंकि उसको तो कुछ अलोकेशन हुआ ही नहीं। लेकिन अभी 2-part प्राइसिंग मेथड में क्या होगा? जो कॉस्ट अलोकेटेड नहीं है, एक्चुअल में से जो कॉस्ट अलोकेटेड नहीं है वो अलोकेट होगी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट को। इससे क्या होगा, वो कॉस्ट को इफिशिएंटली मैनेज करेगा, वो एक्चुअल एक्सपेंस को ज्यादा नहीं होने देगा बजटेड से, राइट। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट विल मैनेज कॉस्ट इफिशिएंटली, किसके वजह से, टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम से, बिकॉज अनअलोकेटेड कॉस्ट विल बी allocated to training department, thus it will try to keep actual expense in कंट्रोल, एक्चुअल एक्सपेंस को कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि जो भी एलोकेटेड नहीं है, राइट, जो भी एलोकेटेड नहीं है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जाएगा, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज ये, द in-house training will cost 14,800, which is higher than outsourcing, but it will provide customized training, right? Number 3, जो बजट एक्सपेंस है, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, वो बेस्ड है ऑन द बजटेड यूसेज, राइट। जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो बेस्ड है ऑन बजटेड यूसेज, और जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो बेस्ड है ऑन एक्चुअल सेशंस। तो इससे क्या होगा कि जो भी वेरिएंस है ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ द सेशंस, उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। जैसे अगर जो मैंने फिक्स्ड एक्सपेंस है, मैंने आपको बोला था 12,96,200 से डिवाइड किया तो कम आ रहा था, 180 से डिवाइड किया तो ज्यादा आ रहा था, तो कंसल्टेंट डिपार्टमेंट अनहैप्पी हो गया था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट अनहैप्पी नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड यूजेस। फिक्स्ड एक्सपेंस are allocated on the basis of budgeted usage. Hence क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस अलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ बजट यूसेज। वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो अलोकेटेड है स्टैंडर्ड रेट से, बट मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्चुअल सेशन। ये तो बजटेड यूसेज पे ही, मतलब 100 सेशन बजट हुए थे तो फिक्स्ड एक्सपेंस बजटेड यूसेज पे ही अलोकेट होगा। हेंस the department, even if going lesser number of sessions, will be allocated the same amount, and hence no friction between यूजर डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा, फिक्स्ड एक्सपेंस किस हिसाब से अलोकेट होगा, बजट के यूसेज पे, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ बजट यूसेज पे। बजट यूसेज पे मतलब क्या, कि अगर आपको लिखा है 100 ट्रेनिंग्स तो 100 ट्रेनिंग्स के हिसाब से ही अलोकेट होगा, भले आपने एक्चुअल में 80 की हो 70 की हो, डजंट मैटर। इससे क्या होगा कि भले ही कोई डिपार्टमेंट कम ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसको फिक्स्ड एक्सपेंस बजटेड के हिसाब से ही क्या होगा, अलोकेट होगा, और दूसरे डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में फ्रिक्शन नहीं होगा। वरना दूसरा डिपार्टमेंट अनहैप्पी हो जाएगा कि मैंने पूरी ट्रेनिंग किया और मुझे क्या किया, ज्यादा अलोकेशन कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट के हिसाब से। वो नहीं होगा, जो बजटेड नंबर ऑफ ट्रेनिंग है उस हिसाब से फिक्स्ड एक्सपेंस अलोकेट होंगे, राइट। तो हमने थ्रेड्स देखे, टू पार्ट प्राइसिंग के हिसाब से ट्रांसफर प्राइस देखा, बचे हुए अमाउंट को कैसे हम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को अलोकेट कर देंगे, और उन थ्रेड्स को ओवरकम कैसे करेगा ये टू पार्ट प्राइसिंग, ये हमने देखा, राइट। दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।